Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aquarius Ascendant and the predictions for the month of September 2023. So let us first start with the good things for your ascendant in this month. The time frame from 17th to 30th of September is the exchange of 7th and 8th house lords for you. Mercury is going to be in the sign of Sun and Sun will be moving into the sign of Mercury after 16th of September. So this exchange would indicate financial gains from your spouse, or if you are running your own business, then you will see substantial inflow of cash in the second half of September. All those people who are in service or jobs, the time frame for 24th to 28th of September is the best time for such people. In fact, all of those who are looking for a new job and currently do not have one will find this time to be more fruitful. And all those people who are currently in jobs will also have a good time, but there will not be any kind of a miracle at the workplace. Mars is the ruler of your profession, so a lot of people in your ascendant belong to the defense sector, construction and building material, petrochemicals, research, and the jobs that require any kind of an investigation, because the mysterious sign of Scorpio falls in your 10th house. People who are planning to change their existing job should not do so, because the 10th aspect of Saturn will mean that you will have to work very hard in your jobs without any substantial gains till the middle of 2025. Mars being the professional lord also means that you will continue to see obstacles in your job. The aspect of Saturn on the 10th house will continue to increase the responsibilities at your workplace. Venus is going to turn directional from its retro position in the month of September, and Venus is a highly benefic planet for you because it owns one of the quadrants, which is the fourth house, and one of the trines, which is the ninth house. But in your case, Venus is going to be in the sixth house, which is not a good placement house wise, and as a result, you will end up spending money on the luxury requirements of your spouse in this month, especially on 12th of September. The ascendant lord continues to pass through the first house itself, but Saturn is going to become retro and it is going to stay here in the retro position till 12th of November. What it means is that Saturn will once again start transitioning towards the 12th house, and it is going to enhance the feelings of lonely and isolation in you, and this will continue irrespective of what the other placement are giving you till the month of November. One of the suggestions that I always give is to meditate and associate yourself with charity in such testing times, and connecting to your spiritual side will also be very fruitful for you to overcome this retro transit of Saturn. If you're planning to travel, then leisure or work related travel is definitely on cards in the month of September. Since Saturn also rules over your 12th house, Aquarius ascendant people usually see a big loss at least once in life, and these people are able to overcome that loss due to their sheer ability to work hard and overcome this loss. Fifth house lord Mercury is going to be in the seventh house, but Mercury is also going to be in a retro position in the first half of September. But the good news is that it is going to turn direct after 15th of September. So if you're a student, then the best time to excel in the competitive exams is from 2nd to 5th of September, and then again from 25th to 27th of September. And if you are in a speculation business, then till 15th of September, Mercury is retro. And even after it turns direct, it is not getting a good support in this house. And that's why you should stay away from speculation in the month of September. The problematic part about the Aquarius ascendant in general is that your fifth house lord is also the lord of your eighth house. So Aquarius ascendant people can actually never rely on their kids to take care of them when they grow old, or in any kind of gains from your kids are also not possible because of this dual occupancy of Mercury of fifth and eighth house. People who are looking to get married have a good probability of marriage before 16th of September, because the seventh house lord Sun will be in its own house and will be aspected by Jupiter. So chances of getting married are definitely there in the first half of September. If you are already married, then you should never advise your spouse, and you should try to speak as less as possible, especially till the month of November. The sign of Sun in the seventh house means that your spouse, anyways, never listens to you. But if you keep on praising them, then they remain happy. Whether they deserve it or not is a different story. Now, there are certain dates which you need to be careful in the month of September. These dates for you are 11th and 12th of September, 16th and 17th of September, and 25th and 26th of September. Just remain cautious during these 6 days. So that's the overall summary for your ascendant.
I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, सबसे पहले आपके लग्न के लिए जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस महीने में वो देखते हैं। अगर आप 17 से 30 सितंबर तक का समय देखेंगे तो उसमें सप्तमेश और अष्टमेश का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 17 सितंबर को सूर्य अपनी राशि से निकल के बुध की राशि में चले जाएंगे और बुध सूर्य की राशि में बैठे रहेंगे। तो ये जो स्थान परिवर्तन होगा, इसकी वजह से अगर आप अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो आपको आपके व्यवसाय में काफ़ी फाइनेंशियल गेन होने की उम्मीद रहेगी। नहीं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने स्पाउस के थ्रू भी पैसा इस समय में मिल सकता है। जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए 24 से 28 सितंबर का समय सबसे अच्छा है इस महीने में। और इनमें भी जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी तलाश रहे हैं उनके लिए ये समय ज़्यादा अच्छा है। जितने भी लोग पहले से ही नौकरी में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा इस महीने में। मंगल आपके प्रोफेशन का स्वामी बनता है और मैंने बहुत से ऐसे कुंभ लग्न के लोग देखे हैं जो मंगल से जुड़े हुए फील्ड में ही होते हैं, यानी डिफेंस सेक्टर में होते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, रिसर्च में, पेट्रोकेमिकल्स में, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको खोद के चीज़ें निकालनी हो, चाहे वो बातें हों चाहे चीज़ें हों। क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशन के हाउस में वृश्चिक राशि पड़ती है और वृश्चिक राशि का मतलब ही है रहस्यमय या जो चीज़ें अंदर छुपी हुई हों। और कुंभ लगने के लोग इस तरह के कामों में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी अभी की नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो ये महीना उसके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि की आपके लग्न पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है और शनि की जब भी 10वीं दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ती है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे चूंकि आपके दशम भाव में 10वीं दृष्टि पड़ रही है तो आप अपने काम को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खास करके 2025 तक अगर आप अपने काम में कोई भी कोताही बरतेंगे तो फिर ये आपको शनि पनिश करेगा। इसके अलावा आपका चूंकि 10th हाउस का ओनर ही मंगल है तो आपको हमेशा ही अपने कार्य में रोड़े अटकते हुए मिलेंगे। अभी ज़्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि शनि की भी 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। तो ये समय है कि आप अपने काम में अपने आप को गाड़ लीजिए और जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहिए। आपके लग्न के लिए शुक्र 6वें भाव में ही बैठे रहेंगे और ये सितंबर के महीने में फिर से मार्गी हो जाएंगे। अगस्त तक शुक्र वक्री अवस्था में थे। शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये 6वें भाव से गुजर रहा है और 6वां भाव कुछ खास अच्छा नहीं कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको पैसा मिलने के बजाय आपके हाथ से पैसे जाएंगे सितंबर में। खास करके 12 सितंबर को आपको अपने पति या पत्नी के लिए कुछ लग्जरी रिक्वायरमेंट्स पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आपका लग्नेश लग्न भाव से ही गुजर रहा है और ये वक्री अवस्था में है और 12 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में ही बैठे रहेंगे। इसके वक्री होने की वजह से वापस 12वें भाव की तरफ जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आप में फिर से वो अकेलापन की भावनाएं जागृत होना शुरू हो जाएंगी। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप मेडिटेट कीजिए या चैरिटी में पैसे दान करिए या फिर आप किसी भी तरह से अपनी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट करने का प्रयत्न कीजिए। नहीं तो आप कहीं फॉरेन कंट्री में चले जाइए जिससे कि आपकी नेगेटिव ऊर्जाएं डिसिपेट हो जाएं। अगर आप सितंबर के महीने में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो ये ट्रैवलिंग डेफिनेटली पॉसिबल है। और चूंकि शनि आपके 12वें भाव को रूल करता है तो बहुत से कुंभ लगने के लोगों को कभी ना कभी जीवन में काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपके लगने के लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और मेहनत करने वाले होते हैं तो वो इस लॉस से निपट पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। आपके लगने के लिए पंचम भाव के स्वामी बुध बनते हैं और ये सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। 15 सितंबर तक बुध भी वक्री अवस्था में रहेंगे और इसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उतरने के लिए 2 से 5 सितंबर का समय सबसे अच्छा है और इसके अलावा 25 से 27 सितंबर तक का समय भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकालने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप शेयर बाज़ार से संबंध रखते हैं तो इस महीने में आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि पहले 15 दिन बुध वक्री अवस्था में है और मार्गी हो जाने के बाद भी उनको कोई खास अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ेगी पंचम और शनि की भी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इस महीने में स्पेक्यूलेशन से तो कुछ खास आमदनी आपको होने वाली नहीं है। आपके लग्न के लिए पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी एक ही बनता है, यानी कि बुध। तो कुंभ लग्न के लोग वैसे भी अपने बच्चों पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं कि वो उनके आगे जाकर कुछ टेक केयर करेंगे। उनको कभी भी अपने किड से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना कि बाकी लगने के लोगों को मिल सकता है। अगर आप इस समय में शादी करने का सोच रहे हैं और आप सिंगल हैं तो 16 सितंबर के पहले तक आपको शादी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सप्तमेश सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है और इसके ऊपर गुरु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है।
तो शादी होने की संभावना तो बहुत स्ट्रांग बनती है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने पति या पत्नी को कभी भी कोई सुझाव मत दीजिए जब तक वो आपसे स्वयं नहीं मांगते हैं। यहाँ पर पड़ी हुई सिंह राशि एक राजा की राशि है, तो आपका जो भी पति पत्नी है वो हमेशा एक राजा या रानी की तरह बिहेव करता है। ना तो वो आपकी कभी सुनता है, ना ही आपके किसी भी बिना मांगे सुझाव पर सहमति जताता है। उनको खुश रखने का एक ही तरीका है कि आप उनकी प्रशंसा करते रहिए, क्योंकि प्रशंसा सुनने से हर सिंह लग्न का व्यक्ति खुश हो जाता है, तो आपकी स्पाउस भी आपके झूठी प्रशंसा करने पर भी खुश हो जाएगी। यही एक तरीका है उनको अपनी बात मनवाने का। अभी महीने में कुछ दिन आपको सावधान रहना है सितंबर के। जिन दिनों में आपको सावधान रहना है वो हैं 11 और 12 सितंबर, 16 और 17 सितंबर और 25 और 26 सितंबर। इन 6 दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। किसी के साथ वाद विवाद से भी बचिए। देखिए, अभी के समय में सितंबर के महीने में प्रोफेशनल तरक्की और अच्छा समय तो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि शनि की नेगेटिव एनर्जीज को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि ये जो अकेलापन आप महसूस करने लग गए हैं जब से शनि वक्री हुआ है, ये स्थिति नवंबर तक जारी रहेगी। काम का बोझ आपके ऊपर एकदम से आया हुआ है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि या तो आप कहीं फॉरेन कंट्री में चले जाइए काम करने के लिए। वहाँ पर भी आपको लोनलीनेस तो फील होगी, लेकिन अलग तरह की लोनलीनेस होगी, क्योंकि वहाँ पे आपके आसपास के कोई लोग नहीं रहेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर फिर भी काम अच्छा चलता रहेगा। या फिर आप मेडिटेशन कीजिए, जो कि सबसे बेस्ट उपाय है जब भी लग्नेश 12वें में जाए उसके लिए। और या फिर आप चैरिटी में अपना समय और पैसा दीजिए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है शनि के इस तरह के ट्रांजिट को डील करने का। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।